ऑलराइट, सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आज क्या बात करने का है, क्या बात नहीं करने का है, कौन से टॉपिक पे? व्हाट इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डिफरेंट? So yes, henceforth on every day, probably, maybe in the long run, initially at least alternate day, Farmylite will come up with few videos on daily basis. It would be something as simple as discussion on question answer. So taking into account नाइपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जीपैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आईसीटी बिट्स मणिपाल पिक अप एनी एंट्रेंस, organic chemistry is their favorite topic. So taking that into account, we have decided that our first point of discussion for this entire week would be daily coming up with question answer session on organic chemistry, or maybe some basic topics discussion, but again on organic chemistry. Ye week hardcore, maybe 3 days or entire 6 days, will dedicate only to organic chemistry. Yes, these all sessions are going to be free. It would be available on our YouTube channel. Just click on the bell icon, subscribe this channel so that you get notification every time a new session is there. More advantages, ये सेशंस रात को 9 बजे नहीं रहेंगे, 8 बजे नहीं रहेंगे, 11 बजे नहीं रहेंगे. It would be simply at 6:45, 7 in the evening. Post lectures, post college 5, 6, take a hour break. At 7 join in. Simple discussion रहेगा. Topics पहले से पढ़ के रखना. I'll try and inform topics prior so that we straight away go on to discussing it. Talking about our today's session, we are going to discuss question answer sessions on organic chemistry name reactions. Not only name reactions, along with name reactions, we'll also talk about different detection test of different functional groups. So to the point बात करते, this entire session will be cutted into different parts in part 1, part 2, part 3 coming up in the upcoming days. So आज part 1 होगा, followed by part 2 in the next, followed by part 3 in the next day. Daily basis पे so that we get through easily. Most importantly, the motive of this video series, web series, is to develop a thought process. कोई भी क्वेश्चन के ऊपर how are we supposed to think, how are we supposed to correlate a reactant to a product, how it is getting converted from one structure to another structure, how is it related? Once you get that thought process in your mind, you don't need me. Next time you're going to read a reaction, you will for sure start thinking on those same lines. So basically, I'm just trying to explain how are you going to approach a question parallelly. So we'll talk about that with the upcoming questions further. So yes, next entire upcoming time is dedicated today only for question answer session. Further in the upcoming videos, I will take up even different topic wise lectures, you can say partly for your basic understanding. And that's how we'll proceed further with each lecture. If you like it, press the bell icon for the next lectures and subscribe it as well. Let's start. Agenda पे बात करते. Just for your information, for the year NIPER 2020, we already achieved All India rank 01 in Pharma MBA category. Yes, a general category and no reservation. Now, talking henceforth from here, we want to repeat that and continue that legacy. So let's start with MCQ practice parallelly. Just for information, Pharmylite also runs live lectures for GPAT 22-23 preparation. If you wish to join, just reach out onto this particular contact number. They'll help you out with the details. Let's begin finally. पहला क्वेश्चन आ गया है. So the entire format is you will get a question first, a question which will be followed by 4 options. That options would be followed by a timer. Once the timer ends, the answer would glimpse on its own. So just observe. The question says phenol on reaction with chloroform and base gives what? That's the question. Timer is over. By the time those 10 seconds get over, you're supposed to tell me the answer. Difficult है initially. 10 second में answer हर कोई conclude नहीं कर पाएगा depending upon easiness or difficult part of a question. But I can tell you it is very much possible. ऐसा नहीं कि it is impossible. Just don't think that you cannot do it. Maybe initial questions आप 10 second में solve नहीं कर पाओगे. Going further in the upcoming months, probably in 5 seconds you will be through. Let's get that going. Let's read the question carefully first. Phenol on reaction chloroform and a base. First and foremost thing, reaction किसका है? Reaction is of phenol. So phenol दिखता कैसा है? Phenol is basically a benzene ring along with a hydroxyl group. ठीक है, phenol बना लिया. It is reacting with chloroform and a base. तो मैंने chloroform लिख लिया along with a base. So that base can be KOH, that base can be NaOH, it can be any base. And what they've asked is basically it gives us what product? Product is the question. First and foremost thing, moment I see phenol along with chloroform and the base, my brain straight away takes me to which reaction? कौन सा name reaction है जिसमें phenol के साथ chloroform और base react करते? It's only one reaction, we all are aware. It is Riemer-Tiemer reaction.
अब ये रीमर टीमर रिएक्शन वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, यू ऑल हैव डन इट इन योर 12th स्टैंडर्ड, मे बी सेमेस्टर 4 अगेन. सो रीमर टीमर रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट करता है विद क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस, and what you get as a product is basically salicylaldehyde. Your product is basically salicylaldehyde. CHO ग्रुप यहाँ पे आ जाता है. बेसिकली यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. वन इज योर ऑर्थो प्रोडक्ट. सो व्हेन यू हैव सब्स्टिट्यूशन ऑन ऑर्थो, इट्स अ ऑर्थो प्रोडक्ट. Another product is basically your para product, where along with OH you will have CHO on para position. यहाँ पे para position है, यहाँ पे ortho position है. Most of the time we have learned that para position का product major product होता है, because उसमें steric hindrance नहीं होती है, correct? वो सबसे दूर है, दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर है, तो ज्यादा major product होगा. But no, that's not the case. I'm sorry. The fact is that the ortho product in case of phenol under Rimmer-Timmer reaction is a major product. Why? सर हमेशा मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला प्रोडक्ट होता है. सिर्फ फिनॉल के केस में, सिर्फ सैलिसिलएल्डिहाइड के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? That my ortho product is a major product. So you all might be aware about the reason, I suppose. Correct. Intramolecular hydrogen bonding. There is a concept of intramolecular hydrogen bonding between these two groups, due to which they are more stable. I just need to know this statement. वो कैसे होता है, कौन किसको बॉन्ड करता है, मैकेनिज्म क्या है, जीपैट में कोई नहीं पूछने वाला. डोंट गेट इनटू मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शंस, यू विल वेस्ट योर टाइम. कहाँ पे कैसे शॉर्ट में करके पढ़ना है, दैट आई विल लेट यू नो. सो डोंट ब्रेक योर ब्रेन ओवर देयर. आई एम गोइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. So yes, I read the question. Phenol on reaction with chloroform and base gives me what? So here is the phenol, here is the chloroform and base. I get ortho product, which is salicylaldehyde, and I get para product, which is basically something which I don't want to reveal now. देखेंगे आगे. Not of our interest anymore. But yes, this is reactant for some name reaction. कुछ तो correlation है. अगर आपको याद आता है तो great. अगर नहीं आता है, don't worry. I'll take it up in the upcoming questions. So basically, this was a question of our test series. We are discussing our test series paper. Test series paper plus additional 20-30 questions which are important being asked in the previous year papers and are correlated. So first and foremost thing, phenol का basically product तो salicylaldehyde आ गया. Is salicylaldehyde an option? Yes, it is. So salicylaldehyde is the answer. What about other options? First and foremost thing, Rimmer-Timmer reaction में benzaldehyde can never be the product. आ ही नहीं सकता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो पहले से बेंजीन पे है, इट्स ऑलरेडी अ फिनॉल. तो रिमर टीमर में बेंजाल्डिहाइड तो आएगा नहीं. तो उल्टा जाते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको राइट आंसर पता नहीं था, आपको क्लिक नहीं हुआ कि प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सैलिसिलएल्डिहाइड. तो लॉजिकली सोचते हैं फिनॉल से बेंजाल्डिहाइड मिल सकता है क्या? कैन दिस OH बिकम CHO? कोई ऐसा नेम रिएक्शन है क्या जिससे ये OH से CHO हो जाएगा? नहीं होगा. देयर इज नो कोरिलेशन. सो बेंजाल्डिहाइड हट गया ऑप्शन में से. अगर बेंजाल्डिहाइड ही नहीं बनेगा तो बेंजोइक एसिड भी नहीं बनेगा, राइट? बेंजोइक एसिड इज जस्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इट. सो इफ देयर इज नो बेंजाल्डिहाइड, ऑब्वियसली देयर इज नो बेंजोइक एसिड. तो दोनों ऑप्शंस बाहर हो गए, 4 में से 2 ऑप्शंस गए. नाउ वी आर लेफ्ट विद अनदर 2 ऑप्शंस व्हिच इज सैलिसिलएल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड. You are very much aware that at the end of Rimmer-Timmer you will get salicylaldehyde. If you want salicylic acid from here, you are just supposed to do oxidation for salicylaldehyde. ये आपका सैलिसिलएल्डिहाइड था, फिनॉल विद CHO. अब बस उसका ऑक्सीडेशन करो, व्हाट यू विल देन गेट इज गोइंग टू बी सैलिसिलिक एसिड. अब ये भी इंपॉर्टेंट है. व्हाई आई विल कम टू दैट. ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द लॉजिक, व्हाट इज द फ्लो एंड ऑल. आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑफ. इफ यू हैव नॉट कैप्चर्ड, you can just go through the video again and just capture it. So talking about the basic understanding, I got the idea that my answer is salicylaldehyde. Why? Because it is a Rimmer-Timmer reaction. In Rimmer-Timmer reaction, basically my chloroform and base are going to react. If they both are going to react, obviously Rimmer-Timmer का product salicylaldehyde होता है. Salicylaldehyde का ortho product, ortho means ये position, ortho के बाद था, उसके बाद वाला para. Ortho का product is going to be the major product. That's how I get it. Now I was talking something about another name reaction which is correlated to it. बहुत बार discuss किया है lectures में भी. Classroom students might be aware, should be able to correlate it. Basically, when you do oxidation for salicylaldehyde, you get another product. The name reaction is Deakin oxidation. This is another name reaction. I'm correlating 2 name reactions together. That's how we teach at Pharmalite. We group name reactions together where they are correlated. So Rimmer-Timmer reaction का जो product है,
दैट इज बेसिकली रिएक्टेंट फॉर डेकिन ऑक्सीडेशन. अब ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो था, सैलिसिल एल्डिहाइड जो था, इट इज अंडरगोइंग डेकिन ऑक्सीडेशन which occurs in the presence of hydrogen peroxide. H2O2 के presence में this oxidation occurs. It's not KMNO4. I repeat, it's not KMNO4. जब मैं ये सेम चीज को KMNO4 के साथ रिएक्ट करता हूं तब प्रोडक्ट कुछ अलग आएगा. What would be the product if I react salicyl aldehyde with KMNO4? What do you think? क्या मिलेगा? Can I say I'm going to have salicylic acid? अभी बात किया ना हम लोग ने, just 2 minutes back. सिर्फ CHO COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. So if I'm doing its oxidation using KMNO4, I'm getting salicylic acid. But if I'm doing its Dakin oxidation using H2O2, the product is different. No, it is the same thing or it is different. Is it the same thing or is it different? Dakin oxidation का product salicylic acid नहीं आता. Yes, slide पे गलती है. सब कुछ सामने दे दूंगा तो आपको thinking power कहाँ से आएगा? You have to keep thinking. Dakin oxidation का product salicylic acid नहीं आता. It's a different product. Anyone who can guess it, anyone who can tell what is going to be the change. We have discussed this multiple times in our classroom lectures. Kuch to hai. So this I'll get back in our second session. I'll give you the answer. Meanwhile, it's your work that you go through it now. If you can tell me the answer now, I'm ready to discuss it now. Kuch to change hone wala hai. This is not going to be a part for your information. COH to rahega hi. If you can tell me the product now, we'll discuss now, or else let's keep it pending. आते नेक्स्ट टाइम बातें जब पूरा रिवाइज करेंगे. सो आई होप दिस फ्लो इज क्लियर. अभी ये सैलिसिलिक एसिड बन गया KMNO4 के ऑक्सीडेशन से. अभी KMNO4 का जो सैलिसिलिक एसिड से ऑक्सीडेशन हुआ है, व्हाट इफ आई डू एसिटाइलेशन फॉर दिस? अगर मैं सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करता हूं, व्हाट डू आई गेट इन एज अ प्रोडक्ट? एनी आइडिया? मैं सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर रहा हूं. सो व्हेन आई डू एसिटाइलेशन फॉर सैलिसिलिक एसिड, what happens is I'm making product over here. I'm sorry, the board is a bit congested, you might get confused. तो ये फिनॉल है, इसका सैलिसिलिक एसिड मतलब एसिड बोल रहा है तो सैलिसिलिक एसिड का एसिड तो रहेगा ही. आपने बोला इसका एसिटाइलेशन करना है, तो अगर एसिटाइलेशन करना है तो इट्स वेरी मच क्लियर दैट विथ रिगार्ड्स टू द प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड का एसिड तो रहेगा ही, एसिड गायब नहीं होगा. एसिड का जो OH था, इंस्टेड ऑफ दैट H आई विल हैव एसिटाइल ग्रुप ओवर हियर. OH निकल जाएगा बट मुझे यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 मिलेगा. सो यस, आई हैव O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. So when I say it is O acetyl salicylic acid, one simple thing which I need to understand that O acetyl salicylic acid का दूसरा नाम aspirin भी है. So if asked, I repeat the question, if asked, product of Remer-Timmer reaction when subjected to oxidation gives salicylic acid, which on acetylation gives a drug which is anticoagulant. Yes, just for your information, aspirin is also anticoagulant drug. You might be aware it is also antipyretic. It has got multiple roles. Just trying to link up different reactions, nothing else. ये सिर्फ first question था. इतना detailed discussion हर question के लिए नहीं कर पाएंगे. But yes, we take up linked wise in all our lectures for organic chemistry name reactions. Going further, this was just first reaction what we discussed. I hope you have captured this. ऐसे बहुत सारे questions है where things will be correlated. So stay on ground. भूलना मत, Dakin oxidation करना है. Go through it now. Going further to the next question, yes, we know that benzaldehyde can never be the product. So taking into account the basic agenda that we are trying to develop a thought process, I just want to tell you one thing. Whenever you are thinking about any question, ensure most importantly that you also think that why other options are not the answer. What might have been the case, कौन से केस में दूसरे ऑप्शन शायद आंसर होते थे. तो ऐसे कलेक्टिव वे में सोचो. जस्ट डोंट गो सिंगुलर वे, जस्ट डोंट गो ऑन वन पाथ. Keep on getting those grounds very clearly. Sure. Next question. Orthohydroxyanisole. So there is something known as orthohydroxyanisole. I don't know the structure probably. Undergoing Remer-Timmer reaction gives what? So there are 4 options. Vanillin, vanilla ice cream. अच्छा दोनों? None. दोनों नाम थोड़ा मैचिंग है, vanilla, vanillin, but I don't know. Let's get an idea. They are saying orthohydroxyanisole. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं.
हियर आई गो, बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज दो ऑप्शंस आइदर साइड है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिसोल इज OCH3 राइट, बेंजीन पे OCH3 होता है तो यू कॉल इट एनिसोल राइट, और इधर OH आ गया तो दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल. अदर डे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर बेंजीन पे CH3 होता है तो यू कॉल इट टोलविन, अगर बेंजीन पे Cl होता है तो यू कॉल इट क्लोरोबेंजीन, अगर बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OCl होता है तो यू कॉल इट बेंजोइल क्लोराइड. I hope my audio is very much clear. No audio breaks. Am I clearly audible? Can I get a confirmation in? Just a yes in. Is the audio clear? Meg, I suppose the audio is clear. Going further, my question over here is orthohydroxy anisole. So this is anisole, benzene पे OCH3, उसके बाजू वाला कार्बन ऑर्थो होता है, उसके बाद वाला कार्बन मेटा होता है, उसके बाद वाला कार्बन पैरा होता है. ओके, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एनिसोल. इट इज अंडरगोइंग रिमर टीमर. तो रिमर टीमर में क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस होता है CHCl3 along with KOH और NaOH. So let's observe how it is changing. उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है. क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस है KOH NaOH. एक चीज श्योर है, जब भी रिमर टीमर रिएक्शन CHO ग्रुप ऐड होता है राइट, हम लोग ने लास्ट स्लाइड पे ही देखा फिनॉल सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था. तो जब फिनॉल सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था वो OH के साथ एक CHO ही अटैच हुआ था राइट. सेम वे यहाँ पे भी CHO मोइटी अटैच होगा सिंस इट्स अ रिमर टीमर रिएक्शन. अब मैंने तुमको पूरा थॉट प्रोसेस दे दिया है. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हमको वैनिलीन का स्ट्रक्चर पता है, अगर हमको वैनिला का स्ट्रक्चर पता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है, तो आंसर आ जाएगा. बट इफ वी डोंट नो स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल्स, सॉल्विंग इट इज डिफिकल्ट. अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ, एम आई अवेयर दैट वैनिलीन दिखता कैसा है? प्रोबेबली यस, प्रोबेबली नो. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. टाइमर तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने स्टार्ट नहीं किया. लेट्स ऑब्जर्व. आई नो दैट हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे होगा. अब ये ऑर्थो पैरा मैं हाइड्रोक्सी ग्रुप के कंसीडरेशन को लेके कर रहा हूँ. पहले जो ऑर्थो पैरा बनाए थे वो ये नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किया था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल. तो कंफ्यूज मत होना कि ऑर्थो मेटा पैरा अलग अलग क्यों है, नहीं. अभी हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए ऑर्थो ग्रुप पोजीशन ये है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए पैरा पोजीशन ये है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो दूसरा ऑर्थो पे मैं अभी सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ. देयर इज नो मीनिंग, इट वुड बी नॉट कॉमन. मैं पैरा प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे CHO अटैच कर दिया. नाउ द लॉजिक इज माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, OH OCH along with CHO. Now the question is this vanillin? क्या vanillin ऐसा दिखता है? अगर vanillin ऐसा दिखता है then it is the answer. Simple. अगर vanillin ऐसा नहीं दिखता है, it's not the answer. Here starts the timer. सोच लो, कुछ लॉजिक है. वैनिला अलग दिखता है, वैनिला अलग होता है, वैनिलीन अलग होता है. So is this product vanillin? If this is vanillin then it is the answer. I hope तुमने पूरा कॉपी कर लिया होगा. Let's check now what is the answer for this particular question. So basically taking it further, if you observe one simple thing, vanillin is the answer. अब ये देखते हैं कि जो तूने बुक में स्ट्रक्चर बनाया वैनिलीन का और इधर जो स्ट्रक्चर आ रहा है, आर दे सेम? दे सेड रिमर टीमर रिएक्शन. रिमर टीमर रिएक्शन बोला तो यस, रिएजेंट इज क्लोरोफॉर्म एंड बेस. ओके, दैट्स वन पार्ट. गोइंग फर्दर, दे सेड ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिसोल. मैंने बेंजीन को सीधा बनाया था, OH OCH3 ऐसे बनाया था. दैट सेम थिंग दे हैव डन, बट देयर पोजीशंस आर डिफरेंट. मैंने ऊपर लगाए थे, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, क्लोरोफॉर्म एंड द बेस, यस वी सॉ रिमर टीमर में KOH NaOH जैसे बेस होते हैं. एंड यस दे ऑलवेज गिव CHO. यस, CHO इज एट पैरा पोजीशन. And this structure what we have got is nothing but vanillin. यही तो बात किया, स्ट्रक्चर तुझे पता भी होगा but then you should know कि इसको vanillin बोलते हैं. That's what I wanted to say. And तूने जो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनाया था, right? Vanillin का स्ट्रक्चर we just made over here. What we had drawn our benzene was something like this: OH OCH3 along with CHO. Are this both structures same? मेरे को तो लगते हैं OH के पैरा पे CHO, OH के पैरा पे CHO, OH के बाजू में OCH. Yes, they both are same. So they both are vanillin. So answer is vanillin. वैनिला जैसा कुछ होता ही नहीं, it's your ice cream. So just a full example, just a full option. तो आंसर एक्चुअली इजी था अगर पता होता कि वैनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता. Let's go to the third question.
This is basically a consisting flavor of over 200 compounds. So ये question में तो इतना नहीं है, but when you solve other questions, idea should not be just to know what is the correct answer. You should know why other three options are wrong. What could have been the change in question that other three options might have become right? Under which situation? So when you do this way, when you're solving one MCQs, you're actually solving 4 MCQs in the process. एक जो correct है वो, दूसरा बाकी के 3 options क्यों wrong है, कौन से situation में वो right हो जाता, थोड़ा time consuming है, but it will bring more perfection. Let's go further. Third question. Formaldehyde undergoing Grignard's reaction. Oh, favorite. सबने पढ़ा है 12th standard. Again second year B Pharm. Semester 4 में again था. Grignard सबका favorite है. Don't think that ये GPAT में नहीं आएगा, नाइपर में नहीं आएगा, 12th में आ गया, नीट में आ गया तो वापस नहीं आएगा. That's not the case. This question still comes. Grignard में कौन सा reagent था, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? Was it something like RMGX? Yes, alkyl magnesium halide. Correct, student, you got it right. Now this RMGX was actually going to react in presence of dry ether, right? It was not simply going to be one way, but it was going to react in presence of dry ether. इससे ही तो हम Grignard reaction पता लगाते थे. Now the question says formaldehyde. Okay, it's undergoing Grignard's reaction. देखते हैं चारों ऑप्शन देख लेते हैं. चार ऑप्शन है मिथेनॉल, primary, secondary, and then both A and B. The product is going to be alcohol only. We all are aware Grignard reagent का product हमेशा एक alcohol ही आता है. But यहाँ पे alcohol as a product आया है, वो alcohol methanol होने वाला है, primary alcohol होने वाला है, secondary की both A and B. Let's try and solve it. Formaldehyde बोला ना, एक बार solve कर लेते. तो formaldehyde है HC double bond OH. I'm reacting formaldehyde with my RMGX. reagent यही लिख लेता हूँ और dry ether. I hope you remember the mechanism. GPAT में कोई mechanism नहीं पूछेगा. I'm here writing it only for explaining it to you. Otherwise, I don't need to actually. This is your intermediate, right? मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑक्सीजन के पास MgX चला गया और ये R जो था वो कार्बन के अटैच हो गया. तो H as it is था, कार्बन पे ऑक्सीजन आ गया, वो ऑक्सीजन पे MgX आ गया, वो सेम कार्बन पे R ग्रुप आ गया, yes आ गया, एंड आ गया हाइड्रोजन था. इट्स सेम. You further do hydrolysis, write H3O plus, write H plus, write H2O, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रोडक्ट क्या आएगा? H, C, H, बाकी की चीजें सेम लिख. ये हो जाएगा OH. RMGX का R वो तो वहीं पे रहेगा, राइट? RMGX का R वहीं पे रहेगा जो आपका अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था. नो चेंज ऑन दैट. यस, यू आर गेटिंग सम अल्कोहल, करेक्ट? कुछ तो अल्कोहल मिल रहा है. इज इट नथिंग बट, कैन आई से इट इज सिंपली R CH2 OH. मानता है? ऑब्जर्व. R, yes R, CH2, yes CH2, आगे OH, yes आगे OH, correct. Is it a primary alcohol? I hope you know the difference between primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन आगे अगर सिर्फ एक मॉइटी को अटैच्ड है, अगर आगे वो सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है, यू कॉल इट प्राइमरी अल्कोहल. अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और कोई कार्बन के एक कार्बन के बदले अगर वो दो कार्बन से अटैच्ड है, यू कॉल इट सेकेंडरी अल्कोहल. तीन कार्बन है टर्शियरी अल्कोहल. देयर इज सम शॉर्टकट व्हेन इट कम्स टू Grignard reaction. Probably most of you know it. Let's check. Basically ये RCH2OH आया. I can say that this is a primary alcohol. So I think answer should be primary alcohol. देखते हैं primary alcohol आ रहा है कि मेरी कुछ गलती है, एक बार चेक कर लेते हैं. So here I go. Here starts my timer. I stopped it. Yes, answer is primary alcohol. चल मैं पास हो गया. Answer तो पक्का primary alcohol. Let's look at the justification. ये कुछ shortcut का ही methodology है. This is actually a picture from your 12th standard textbook. I hope your base is strong. GPAT 2021, 33 questions out of 125 questions. 25% of your GPAT paper was from basics. So we need to be strong on that as well. Reactant क्या बोला था? Formaldehyde. Yes, formaldehyde. Formaldehyde. RMGBr Grignard reagent. मेरा product yes यही आया. And yes, it's a type of primary alcohol. अभी shortcut क्या है सर? यही shortcut है.
फॉर्माल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अंडरगो करेगा, फॉर्माल्डिहाइड विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी अल्कोहल. यू टेक एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड. आप फॉर्माल्डिहाइड के बदले कोई भी एल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, योर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी अल्कोहल ओनली. फॉर्माल्डिहाइड के बदले आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, योर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी अल्कोहल. On other grounds, if your starting material is not aldehyde and if it is a ketone, your ketone will always give you alcohol as a product. तो अगर aldehyde reactant है तो प्रोडक्ट प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा. अगर स्पेसिफिकली फॉर्माल्डिहाइड रिएक्टेंट है, इट विल ऑलवेज बी प्राइमरी अल्कोहल. अगर अल्डिहाइड सेकेंडरी है, सॉरी, अगर कोई भी अल्डिहाइड है एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड, देन योर प्रोडक्ट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल. And if your starting material is a ketone, your product will always be a tertiary alcohol. अलग अलग एग्जांपल लेके कर लो, you will actually find this. अच्छा ये ठीक है, समझ में आ गया सर. फॉर्माल्डिहाइड होता है तो प्राइमरी, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड तो सेकेंडरी, कीटोन होता है तो टर्शियरी. सर कैन आई गेट मिथेनॉल? मिथेनॉल प्रोडक्ट आ सकता है क्या? मिथेनॉल की तो बात ही नहीं की कहीं पे. तो जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन, फॉर्माल्डिहाइड कैन नेवर गिव यू मिथेनॉल एज अ प्रोडक्ट. It can never be prepared by Grignard's reaction. A big no. You can never get formaldehyde as a product. Now the question goes, why sir? Formaldehyde क्यों नहीं मिलेगा? Simple reason. Sorry, methanol क्यों नहीं मिलेगा as a product? You said your reactant is either a aldehyde or a ketone. अगर मैं formaldehyde लेता हूं तो एक कार्बन आ गया. आपने बोला इसको अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड के साथ रिएक्ट करना, तो अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड में दूसरा कार्बन आ गया. अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड बोल रहे हो ना, तो दिस इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी अल्काइल ग्रुप. इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5, इट कैन बी C3H7, कुछ भी होगा, बट इट हैज टू बी अल्काइल ग्रुप. इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन. बेसिकली तेरा प्रोडक्ट क्या आता है? HCHO along with R on this side, जो हम लोग ने किया था, और इधर H आ जाता. एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये R ग्रुप का होगा, which is compulsorily supposed to be a alkyl group only. In this case, do you expect methanol? I suppose no. Methanol का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3OH. And something which has just one carbon can never be a product of Grignard. I hope you get the flow. Let's go to the next question. तीन ही क्वेश्चन हुए बॉस. Let's speed up. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड वी डोंट थिंक अ लॉट ऑन ईच क्वेश्चन. अच्छा ये तो अभी किया ना, कीटोन अंडरगोइंग ग्रिग्नार्ड, अभी आपने देखा था राइट. नथिंग मच टू डिस्कस. इट शुड गिव मी टर्शियरी अल्कोहल. इसके लिए मैंने लास्ट स्लाइड पे ही इसका डिस्कशन भी कर लिया. I suppose we can straight away split over to next one. Just a second. Sorry. So इसमें कुछ डिस्कशन जैसा है नहीं. We just saw it on the last slide. It is supposed to be a tertiary alcohol only. जब तक टाइमर नहीं तब तक. All right. So this was our question number, which was related to the same earlier question. Primary हो गया, secondary हो गया. Under any case, it can never give me methanol. अच्छा वो आपने इधर all नहीं लिखा. कीटोन से आपको सिर्फ टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से आपको तीनों नहीं मिलता. तो गलती से भी डोंट गो फॉर ऑल, थिंकिंग दैट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों मिलता है. ऐसा सोच के ऑल पे क्लिक मत कर देना. कीटोन है तो इट इज सपोज टू बी स्पेसिफिक ओनली एंड ओनली अ टर्शियरी अल्कोहल. सेम लॉजिक इन. लेट्स गो टू नेक्स्ट. Tollens reagent. I told you initially it's not going to be only about name reaction. Along with name reaction we'll also talk about detection test. Yes, इस पे से क्वेश्चन आते हैं across all the entrances, specifically more for GPAT and NIPER. Tollens reagent कहीं तो सुना था ना, ये पास्ट में भी बहुत बार आया है कहीं ना कहीं. तेरे 11th-12th में, मेरे 11th-12th में, किसी किसी को 9th-10th में भी था. लेट्स चेक. इसका कुछ तो दूसरा नाम भी है. आई सपोज ये टोलेंस रिएजेंट वो सिल्वर मिलर टेस्ट भी बोलते हैं. आई डोंट नो, और डू आई नो? शायद एक ही टेस्ट के दो तीन नाम होते हैं. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू रिमेंबर ऑल द नेम्स. हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ एक दो रिएक्शन के नाम याद रखूं. नो, दिस वोंट वर्क आउट. I have to be very much clear and I have to ensure that I remember alternate names as well. Let's check. 10 सेकेंड दिए तुझे. कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्डिहाइड, ऑल. नहीं, चारों तो नहीं. नहीं, कीटोन तो नहीं होगा. तो शायद अल्डिहाइड था. करेक्ट, शायद अल्डिहाइड था. यस यस, मैंने मेरे 12th में पढ़ा था. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डिटेक्शन टेस्ट क्या है? आई टोल्ड यू, जस्ट डोंट थिंक व्हाई दिस इज करेक्ट ऑप्शन. थिंक अबाउट इन विच केस अदर ऑप्शंस माइट हैव बीन करेक्ट.
So when it comes to carboxylic acid, for that the detection test is sodium bicarbonate test and ester test. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, you know. Most of us think that ester test है तो ester के functional group detection के लिए होगा. I'm sorry my friend, that's not the case. When they're saying test, it is actually for carboxylic acid. क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, that you will find in its detailed mechanism. कि क्यों ester test is used for detection of a carboxylic acid. Talking specifically over here, sodium bicarbonate test से भी effervescence होता है, ester test से भी मुझे यही identify होगा that it's a carboxylic acid. So you should know what are the detection tests for other options. अगर मैं कीटोन की बात करूं, कीटोन के लिए डिटेक्शन टेस्ट कौन सा है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. ठीक है, ये तो याद रहेगा. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सर आपने बता दिया. कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एस्टर टेस्ट. व्हाट अबाउट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी मोर स्पेसिफिक? अगर कीटोन के बदले मिथाइल कीटोन बोला तो मिथाइल कीटोन के लिए स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है सर? अगर मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मुझे मिथाइल कीटोन ही चाहिए तो मिथाइल कीटोन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ मिथाइल कीटोन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज नथिंग बट आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट. नाउ दिस इज मोर स्पेसिफिक. स्पेसिफिकली मिथाइल कीटोन क्या मैकेनिज्म एंड ऑल कोई पूछेगा नहीं जीपैट में, बट यू शुड एटलीस्ट नो देयर नेम्स. ठीक है सर. कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एंड एस्टर टेस्ट. कीटोन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. मिथाइल कीटोन वाज योर आइडोफॉर्म टेस्ट. गोइंग फर्दर, अल्डिहाइड वाज टोलेंस रिएजेंट जिसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है. बट सेम अल्डिहाइड के लिए देयर आर फ्यू मोर टेस्ट. बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज आल्सो योर aldehyde. Felling's test is also for your aldehyde. Just for your information, you somewhere need to know their chemical composition. Felling's test में I hope you are aware there is something known as solution A, there is something known as solution B. दो में से एक कोई Rochelle salt होता है. Correct. ये सारी चीजें GPAT के लिए important है. Ensure that you know it. It's actually important. Going further, talking to the next question, which among the following cannot be a Remer-Timmer product? अरे स्टार्टिंग में वो फर्स्ट स्लाइड में आया था कि बेंजाल्डिहाइड कैन नेवर बी अ रिमर-टिमर प्रोडक्ट. रिलेटेड है ना चीजें, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट टुगेदर. चेक. यस फर्स्ट स्लाइड पे किया था, याद रहेगा तो. अगर नहीं देखा था जस्ट स्वाइप बैक एंड गो थ्रू इट अगेन. यू विल गेट द लॉजिक व्हाई बेंजाल्डिहाइड कैन नेवर बी अ रिमर-टिमर प्रोडक्ट. सेम चीज है. फरफ्यूराल कहां से आया? फरफ्यूराल कैसा दिखता है? तो बेसिकली दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान. अगर फ्यूरान रिमर-टिमर अंडरगो करता है तो उसके सेकंड पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है, विच इज नथिंग बट फॉरफ्यूराल. वैनिलीन की तो बात की थी, अब भी बात कर रहे थे. यहाँ पे CHO कैसे आया? दैट इज बेसिकली वैनिलीन. गोइंग फर्दर, सैलिसिल एल्डिहाइड. अरे ये तो टिपिकल प्रोडक्ट है यार, ये तो प्रोडक्ट है रिमर-टिमर का है. करेक्ट. वी जस्ट सॉ दिस इज माय स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल reaction with chloroform and a base, and here is my product which is basically salicyl aldehyde. तो तीनों ऑप्शन जो थे वो तीनों तो प्रोडक्ट थे ही, मुझे वो पता था. अगर मुझे ये भी नहीं पता था कि राइट आंसर क्या है, आई वाज श्योर दैट अमंग दिस थ्री नन ऑफ देम इज द राइट आंसर. वो किसी ना किसी के प्रोडक्ट है. दैट्स हाउ आई वांट टू डेवलप अ थॉट प्रोसेस इन यू. सोचने का तरीका बदल बॉस, दैट्स वेयर योर आंसर लाइज. ऑलराइट, गोइंग टू द नेक्स्ट वन. कानिजारो. ओ फेवरेट, बहुत फेवरेट है, बहुत बार आया है, सबका फेवरेट है, सबके लिए इजी भी है. कानिजारो रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर. कानिजारो रिएक्शन की कुछ स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट होती है, उसकी कुछ तो जरूरत है, विदाउट विच कानिजारो रिएक्शन डजंट हैपन. Just for your information, Pharma students, these all questions are a combination of our test series along with 25-30 other questions which are from different competitive exams in earlier days and few being formed on our side. So ये अपनी test series के questions है. So ensure that you have solved that parallel. Talking about Cannizzaro reaction is possible for the timer has started. You have options acetaldehyde, propanol, benzaldehyde, butanol. अब 2 मिनट के लिए मैं सोच लेता हूँ कि बॉस मुझे इसका आंसर नहीं पता कि कैनिजारो रिएक्शन किसके लिए नॉट पॉसिबल है, मुझे नहीं पता. तो यहाँ पे तो टाइम खत्म हो गया, मैं इसको फ्लैग करके रख दूंगा. अभी फ्लैग का ऑप्शन क्या होता है? गो थ्रू द अर्लियर वीडियोस. फ्लैगिंग, मार्क फॉर रिव्यू, क्या ऑप्शंस हैं एंड हाउ आर दे बेनिफिशियल. देयर इज वन वीडियो ऑफ डेमो ऑफ टेस्ट सीरीज दैट विल गिव यू एन आइडिया. आई हैव पोस्टेड इट इन द डिस्क्रिप्शन. कैनिजारो रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर, पता नहीं है कैनिजारो रिएक्शन का क्या क्राइटेरिया था.
मैं एक काम करता हूँ, मेरा IUPAC स्ट्रॉन्ग है, मैं चारों स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ और देखता हूँ फिर ये चारों में डिफरेंस क्या है. एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड. Just a second, trying something different. मैं बेंजाल्डिहाइड के बेंजीन को अलग वे में लिख रहा हूँ. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट विथ 3 डिफरेंट डॉट्स. So basically my double bonds are over here, just assume they are right there. Going further, after my double bonds being present over there, just a second, I suppose eraser is still there. एक बार वापस बना लेते हैं. So I was first talking about acetaldehyde. I'm so sorry for the inconvenience. Next was propanol, CH3 CH2 C double bond OH. This is my second option. Third option was benzaldehyde. I draw benzene ring, C डबल बॉन्ड OH. अरे ये बेंजीन रिंग है, नहीं, इसको डबल बॉन्ड्स होने चाहिए. आगे डबल बॉन्ड्स, ये कार्बन है, ये एक कार्बन पे एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों बॉन्ड्स बन गए. एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, चारों बन गए. ये 1 2 3 बॉन्ड बना है, चौथा बॉन्ड विल बी हाइड्रोजन. सेम वे ये कार्बन पे 1 2, ये तीसरा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड विल बी हाइड्रोजन. सेम वे ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा हो गया. ये कार्बन पे 1 2 3, तो इस पे भी एक हाइड्रोजन. सेम वे इस पे भी एक हाइड्रोजन. सेम वे इस पे भी एक हाइड्रोजन. सिर्फ यही एक कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन नहीं है बेंजीन रिंग में. एंड लास्टली आई टॉक अबाउट ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल इज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O along with H. ठीक है, चारों स्ट्रक्चर बना ली. अब चारों स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटी, चार में से कोई 3 स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलरिटी है क्या? ऑब्जर्व करते. ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है CHO. अभी हर फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं. ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है. एक सिंपल लॉजिक है बॉस. कानिजारो रिएक्शन का प्री रिक्विजिट ये है दैट यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है. ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास. अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकता. ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है. सिंस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रोपेनॉल भी कैनिजारो रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकता. ब्यूटेनॉल पे जाते हैं. ये CHO है, इसके बाजू में अल्फा कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकता. ये तीनों के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी थी. बट बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख. बेंजाल्डिहाइड के स्ट्रक्चर का जो अल्फा कार्बन है विच इज दिस वन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है. इट इज लैकिंग हाइड्रोजन. है क्या? नहीं है. एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बॉन्ड हो गए. सो इट इज लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन. चारों स्ट्रक्चर में सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, सिर्फ इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है. तो मैं वो वैसे भी कंक्लूड कर सकता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज बेंजाल्डिहाइड. लॉजिक बॉस, लॉजिक. बहुत बार आंसर पता होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे जब हम जाते हैं आंसर अपने आप हमको मिल जाता है. So be careful on this grounds. Things are easy provided you don't confuse yourself. Same चीज का ही justification है. So I'll just rush through it. The basic requirement for a Cannizzaro reaction, it reacts with aldehydes without alpha hydrogen. Alpha hydrogen नहीं होना चाहिए. Benzaldehyde के स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. दिख रहा है? नहीं है. सेम चीज जो मैंने यहाँ पे बनाई थी वही है. ऑलराइट, ये बाकी के सारे एल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर है which I just drew free hand. You can observe they all have alpha hydrogen. इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है. That's all with reaction of Cannizzaro, this particular question. Taking further, जैसे Cannizzaro होता है, Cannizzaro के साथ आपने क्रॉस कैनिजारो भी पढ़ा रहेगा. क्रॉस कैनिजारो के भी कुछ स्पेसिफिक खुद के रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी भी कुछ स्पेसिफिसिटीज थी. So yes, we'll look upon that as well further. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बाकी के तीनों ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन थे, बेंजाल्डिहाइड में नहीं था.
All right, next question. Benzaldehyde undergoing Perkin condensation. सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि पर्किन कंडेंसेशन होता क्या है. पता है, टाइमर चालू हो गया. इट्स फॉर यू. पर्किन कंडेंसेशन क्या होता है? मुझे सिर्फ इतना याद है कि पर्किन कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट होता है दैट इज बेसिकली सिनामिक एसिड. मुझे इतना ही याद है बस. मुझे इसके सिवा और कुछ याद नहीं है. ट्रस्ट मी, मुझे सच्ची में कुछ याद नहीं है इसके सिवा. हाँ, मुझे ये याद है उसका स्टार्टिंग मटेरियल एक बेंजाल्डिहाइड होता है. अब ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिनामिक एसिड है, वो आंसर है. मुझे बाकी कुछ सोचना ही नहीं है. अभी कैसे किया, कहाँ से आया, दूसरा मटेरियल क्या था. मुझे और एक चीज याद है जो पर्किन रिएक्शन को बहुत स्पेसिफिक है. देखते आएगा अभी. यस, सिनामिक एसिड इज द आंसर. यस, योर प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड. बताता हूँ स्ट्रक्चर कैसे दिखता है वो भी बताता हूँ. So this is basically the reaction. You have your benzaldehyde. The specific part of Perkin reaction is it's acetic anhydride. Yes, this is actually acetic anhydride. This is nothing but something like this. ये acetic anhydride ही है, correct? CH3CO twice. CH3CO twice along with the oxygen. This is actually identification point when benzaldehyde is reacting with acetic anhydride. It's nothing but Perkin condensation. थोड़ा आगे जाते. सिनामाइडिहाइड प्रोडक्ट कभी भी पर्किन का एल्डिहाइड तो होता नहीं, तो वो तो आंसर है ही नहीं. गोइंग फर्दर, सिनामिक एसिड बीइंग द आंसर. जस्ट अ सेकेंड. इसके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का सवाल ही नहीं. इट्स सिंपली बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड. तो वो दोनों तो आंसर ही नहीं है. एंड बेंजाल्डिहाइड तो रिएक्ट आंसर हो नहीं सकता था बिकॉज वो तो क्वेश्चन है. तो ऑप्शन यही बचता है. आई होप यू आर क्लियर विद द लॉजिक. सिनामिक एसिड लुक्स समथिंग लाइक दिस. योर रिएक्टेंट वाज बेंजाल्डिहाइड. benzene पे C double bond to H. Basic understanding when it comes to Perkin reaction, easiest way to identify it is benzaldehyde reacting with acetic anhydride. वो acetic anhydride का एक छोटा सा टुकड़ा which is basically CHCOOH. जब भी Perkin reaction होता है ये moiety attach हो जाती है. बस reactant to product में यही difference है. check. C6H5CHO, C6H5 benzene ring CHO. मैंने बोला ये मॉइटी अटैच हो जाती है पर्किन रिएक्शन में. ऑब्जर्व कर, क्या यही मॉइटी अटैच हो रही है? ऑब्जर्व, इतना पार्ट तो पहले भी था ना. C6H5CH, वो ऑक्सीजन चला गया, वो ऑक्सीजन के बदले सिर्फ ये मॉइटी आ गया. दिस इज हाउ यू मेक इट सिंपल. जी पार्ट में कोई मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा है. टाइम वेस्ट मत कर. ऑब्जर्व द चेंज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप अ थॉट प्रोसेस. If you're liking this video, share it with your friends so that they get benefit as well. Going further, next question देखते. नेक्स्ट क्वेश्चन जब बेसिकली आएगा, अभी थोड़ा स्पीड अप करते. आई होप इतने सारे लाइक एमसीक्यूज में आई हैव गिवन यू अ थॉट प्रोसेस टू थिंक अपॉन. नाउ आई विल स्ट्रेट अवे रश थ्रू द लॉजिकल वे ऑफ गोइंग फर्दर. यू शुड बी एबल टू कंक्लूड. एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इज नीडेड. Active methylene group is needed for which of the following reaction? First and foremost thing, active methylene group जब भी सुनता हूं ना, मुझे दो ही रिएक्शन याद आते. One is novinazole, another is Michael, right? One is, अच्छा दोनों रिएक्शन है, दोनों के ऑप्शंस है. Probably the answer is both. This is the way you identify. So GPAT में ना reactions are very easy. Based on the question, you can straight away come to which name reaction it is. So moment I hear the word active methylene, my brain should straight away think about novinazole and Michael. This is how you grip different reactions together and study them together. आंसर both ही होगा. टाइमर जाने दे. अच्छा, आंसर both ही है. अब देख लेते थोड़ा रिएक्शन के बारे में भी. ये आ गया नोविनाजल, ये आ गया माइकल. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके बारे में समझते. एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बेसिकली मींस व्हाट? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप खुद कैसा दिखता है, हम बोलना क्या चाहते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस. CH2CnCOOH, or it is basically a methylene group which is attached to two electron withdrawing groups, EWG. It is basically a methylene group which is attached to two electron withdrawing groups, COH, CN. दोनों electron withdrawing groups है, correct? Since both are electron withdrawing groups, the logic is very simple. Active methylene group, you have a ester over here. Malonic ester is another easiest way to identify novinazole reaction. Moment you see malonic reaction, malonic ester as a reactant, it's a novinazole reaction.
ये रहा आपका CH2 if you can identify. Same way over here you have that same malonic ester, same reactant, they both are active methylene group. That's how your answer is both. So yes, जो reactions में similarity है वो भी पकड़ते जाओ. Things are easy. Let's take to the last question for our first session. 10 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट लेक्चर आगे और स्पीड अप करेंगे. स्टार्ट था, प्रोबेबली वी कैन गेट बेटर विद द अपकमिंग लेक्चर्स. कीटोन टू एस्टर कैन बी अचीव्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. कीटोन टू एस्टर बोला है ना, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन होता है. अब कीटोन से सर आपको बनाना है एस्टर, तो अगर मैं इससे एस्टर बनाने जाऊं तो बेसिकली आई कैन से दैट CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 हो गया ना एस्टर. एस्टर इज R C डबल बॉन्ड O OR हो गया एस्टर. तो बेसिकली मेरा प्रोडक्ट एक कीटोन से एस्टर में कन्वर्ट होने वाला. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये 4 ऑप्शन है. ओके, बेयर-विलेगर, कर्टियस, स्मिथ, लॉसन. ये तीनों रिएक्शन में मुझे एक सिमिलरिटी पता है विच इज इन कॉम्बिनेशन विथ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन. ये चारों रिएक्शन में एक सिमिलरिटी है. जितना मुझे याद आ रहा है ये चारों रिएक्शन के प्रोडक्ट्स तो अमाइन होते हैं. आई रिकलेक्ट दैट द प्रोडक्ट फॉर ऑल दिस 4 रिएक्शंस इज एन अमाइन. अगर ये चारों का प्रोडक्ट अमाइन है, आई डोंट इवन नीड टू थिंक. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एलिमिनेशन आई नो आंसर इज रीअरेंजमेंट. अनदर वे टू आइडेंटिफाई इट इज कीटोन टू एस्टर कन्वर्ट करने वाले नेम रिएक्शंस बहुत कम है. ओनली वन ऑफ देम इज बेयर विलेगर. इसके साथ और 2 रिएक्शन है जिसके अंदर प्रोडक्ट कीटोन से एस्टर में कन्वर्ट होता है. Otherwise things are very simple, and based on method of elimination I can straight away conclude that it's Beer-Vinegar rearrangement. Anyone who can tell me which more name reactions are there wherein a ketone gets converted into ester? कोई ऐसा name reaction जो F से start होता है, I से end होता है. I hope you will be able to correlate. बीच में fill in the blank आपके लिए. देख इनके साथ next lecture में देख लेंगे. एक और question करना है. आंसर बेयर विनेगर है. यस, लेट्स जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट. लेट्स चेक. सो वी ऑल नो दैट बेसिकली ये तीनों रिएक्शन आपको एंड में अमाइन ही देने वाले हैं. योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी अ अमाइन ओनली, इनफैक्ट इन कर्टियस एज वेल. ओनली डिफरेंस इज द स्टार्टिंग मटेरियल. कहाँ पे अजाइड, कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और कहाँ पे एसिड क्लोराइड. अदर डे मैं ज्यादा डिटेल में जाता तो मैं तीनों रिएक्शन एक्सप्लेन करता, बट आई होप यू आर अवेयर. And yes, only over here your oxidation of ketone occurs to make it into a ester. Easiest way to identify per acids. इसके reactant में जो reagent था that was trifluoroperoxy acid CF3C triple bond OH. I hope things are clear. Last question, पक्का वाला last. इसके बाद जाते हैं. ठीक है, I understand 1 hour is almost too much. We are about to reach first lecture at the end with so much of discussion, so many name reactions, Riemer-Tiemer reaction, Nominagel, Michael, Grignard, Hoffman, Beer-Vinegar, Curtius, Lawson, Smith. बहुत कुछ हो गया बस. ग्रुपिंग करके हुआ, शॉर्टकट्स के साथ हुआ. स्टडी द सेम वे. जो रिएक्शन सेम है वो साथ में आने दो. नोमिनाजल माइकल सेम है, साथ में किया. लास्टली क्वेश्चन बोल रहा है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ एसिटामाइड टू. मतलब एसिटामाइड का कन्वर्जन होने वाला. मैंने साइड पे बोला हॉफमैन डिग्रेडेशन को वहां पे ग्रुप करके कि हॉफमैन डिग्रेडेशन हो, लॉसन हो, स्मिथ हो, कर्टियस हो, सबका प्रोडक्ट एक अमाइन ही आने वाला है. दैट्स व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड. तो इसका प्रोडक्ट भी एक अमाइन ही आने वाला है. लेट्स ऑब्जर्व. अमाइन है, अरे यार 2 ऑप्शन अमाइन है. ठीक है, सोचते हैं इसके ऊपर. एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों आंसर नहीं है. ना ही मिथेनल आंसर है, ना ही इथेनल आंसर है. दे बोथ आर एल्डिहाइड. आई नो प्रोडक्ट इज एन अमाइन. तो 2 ऑप्शन अमाइन है, ये दोनों में सोचना है. कन्वर्जन ऑफ एसिटामाइड टू. तो पहले एसिटामाइड का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ. CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. आपने बोला कि प्रोडक्ट बनने वाला है अमाइन. तो अमाइन बनेगा तो या तो CH3 NH2 बनेगा, या तो फिर 2 कार्बन थे तो CH3 CH2 NH2 बनेगा. राइट, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे ना, तो दोनों कार्बन प्रिजर्व करूंगा तो या तो इथाइल अमाइन बनेगा या तो मिथाइल अमाइन बनेगा. वही दोनों ऑप्शन है. और डिफिकल्ट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन लास्ट स्लाइड पे जो 3 रिएक्शन देखे, कर्टियस, लॉसन, स्मिथ, चारों नेम रिएक्शन, हॉफमैन, कर्टियस, लॉसन, स्मिथ, चारों नेम रिएक्शन में whenever that reactant is getting converted to product,
the product is going to have one carbon less compared to the reactant. फिक्स कर लो दिमाग में, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कर्टियस रिएक्शन, लॉसन रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब कन्वर्ट होगा एक कार्बन कम हो जाएगा. तो लेट्स ऑब्जर्व, यहाँ पे अगर एक कार्बन कम होगा, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में 1 कार्बन आएगा, मतलब ये प्रोडक्ट है. अगर ये प्रोडक्ट है तो मिथाइल अमाइन है, तो दिस इज द आंसर. मेक्स इट सिंपल. लेट्स जस्ट गो थ्रू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम. मिथाइलामाइन पास हो गया, लॉजिक भी सही फिट हुआ है, आंसर भी मिथाइलामाइन. अमाइड टू प्राइमरी अमाइन with 1 carbon less, that's the logic of your Hofmann bromide. Acetamide आ गया reactant, this is your reactant for Hofmann bromide. Br2 and NaOH coming together, bromine and NaOH coming together. Here you have your product which is basically a methylamine. Going further, sir, no more further. रुक जाते हैं. Decene oxidation, your homework, next lecture. Hoffman Curtius, Lawson Smith देख के आना, and in next lecture we'll continue right from here. Thank you so much. Stay tuned every evening sharp at 7. कुछ ऐसा होगा या तो कुछ छोटा होगा, but होगा for sure. Let's bring a change. Thank you so much. Target AIR 01. Take care. Stay safe. Stay happy. Thank you so much.